آج ویو 360 میں ایئر انڈیا بوئنگ اور ایئر بس سے 470 ہوائی جہاز خریدے گی. آپ کو ملوائیں گے لاہور کی گلشن بی بی سے جو نوجوانوں کو نشے سے دور رکھنے کے لیے گھر گھر جا کر کاؤنسلنگ کرتی ہیں. اور مصنوعی ذہانت پر مبنی نئے سافٹ ویئر سے ماہرین تعلیم کیوں پریشان ہیں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. گزشتہ چند ہفتوں میں بھارت کے ایک بڑے کارپوریٹ گروپ اڈانی گروپ کو مارکیٹس میں $100 ارب سے زیادہ کا نقصان ہوا، جس کے بعد کچھ ماہرین معیشت سمجھتے ہیں کہ بھارت کی معیشت پر بھی اس کا اثر پڑ سکتا ہے. بھارت اس وقت دنیا کی 5ویں بڑی معیشت ہے. چند ماہ پہلے بھارت نے برطانوی معیشت کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. بھارت میں اس وقت تقریباً 15 لاکھ بڑی اور درمیانے سائز کی کمپنیاں کام کر رہی ہیں اور بھارتی اسٹاک مارکیٹ کا حجم $30 کھرب سے بڑھ چکا. عالمی مالیاتی ادارے IMF کے مطابق تقریباً $35 کھرب کی بھارتی معیشت کی شرح نمو اس سال بھی 6% سے زیادہ رہے گی، جبکہ پوری دنیا کی ترقی کی رفتار 3% سے بھی کم رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے. 80 کی دہائی میں دیوالیہ ہونے کے خطرے سے دوچار بھارت کی معیشت 40 سال میں اب دنیا کی سب سے بڑی معیشتوں میں شمار ہوتی ہے. بھارتی معاشی ترقی کی ایک واضح مثال بھارت میں فضائی سفر میں کئی گنا اضافہ ہے، جس کی وجہ سے بھارتی ایئر لائن ایئر انڈیا کی طرف سے اپنی تاریخ کا سب سے بڑا ہوائی جہاز خریدنے کا آرڈر کیا گیا ہے. 470 جہازوں کے اس آرڈر میں $34 ارب کے 220 جہاز امریکی کمپنی بوئنگ اور 250 جہاز یورپی کمپنی ایئر بس سے خریدے جا رہے ہیں. تعداد کے لحاظ سے یہ بوئنگ کی تاریخ کا دوسرا بڑا آرڈر ہے، جس کو امریکی صدر بائیڈن نے بھی تاریخی قرار دیا ہے. اس بارے میں مزید معلومات دینے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ارم عباسی. ارم، کتنا فائدہ ہوگا اس آرڈر کا امریکی معیشت کو؟ جی اسد، گزشتہ روز اس پرچیز کے حوالے سے صدر بائیڈن نے ایک بیان میں اس کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ انہیں فخر ہے کہ وہ یہ پرچیز کا اس کا اعلان کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ مینوفیکچرنگ کی دنیا کی قیادت کر سکتا ہے اور کرے گا. اپنے بیان میں ان کا یہ کہنا تھا کہ اس خرید و فروخت سے امریکہ کی 44 ریاستوں میں 10 لاکھ نوکریوں کو سپورٹ ملے گی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان نوکریوں میں بیشتر ایسی نوکریاں ہیں جس کے لیے ڈگری کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. انہوں نے گزشتہ روز ٹیلی فون پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے بات بھی کی، اور اپنے بیان میں ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ وہ بھارتی وزیر اعظم کے ساتھ مل کر باہمی تعلقات کو مضبوط چاہتے ہیں تاکہ دونوں ممالک عالمی چیلنجز کا مل کر مقابلہ کر سکیں اور شہریوں کو مزید سیکیور اور خوشحال زندگی مہیا کر سکیں. ساتھ ہی ساتھ اگر ایئر انڈیا کی بات کریں تو ایئر انڈیا کا اس موقع پر یہ کہنا تھا کہ یہ پرچیز ظاہر کرتی ہے ایئر انڈیا کی صلاحیت کو اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کو کہ بھارت ایوییشن کی دنیا میں کتنا آگے بڑھ رہا ہے. بہت شکریہ ارم آپ کا. آپ اس حوالے سے ہمیں بتا رہی تھیں کہ جو ایئر انڈیا کی ڈیل ہے وہ کس طرح سے ہونے جا رہی ہے. بھارت کی اوور آل بھی ایکسپورٹس جو ہیں ہم دوسرے پیٹرن پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑھ رہی ہیں. بہت شکریہ ارم. اس پہ مزید ہم آپ سے بھی اپڈیٹ لیتے رہیں گے. بھارت کی اپنی $1.5 ارب کی سالانہ دفاعی برآمدات کو اگلے 2 سال میں 3 گنا بڑھا کر $5 ارب تک کرنے کا ہدف رکھا ہے. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اس ہفتے بھارت میں ہونے والے ایرو انڈیا شو کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ بھارت 2024-25 تک اپنی سالانہ دفاعی برآمدات کو 3 گنا کرنا چاہتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ بھارت جو کئی دہائیوں سے دفاعی ساز و سامان کے لیے دنیا کے سب سے بڑے درآمد کنندگان میں سے ایک تھا، اب 75 ممالک کو دفاعی سامان برآمد کر رہا ہے. بھارت میں ہر 2 سال بعد منعقد ہونے والے اس شو میں ماہرین کا اندازہ ہے کہ اس بار $9 ارب کے دفاعی معاہدوں پر دستخط ہو سکتے ہیں. بھارت کی تیز رفتار معاشی ترقی کا راز کیا ہے اور اس کا اثر بھارتی عوام پر کیسے پڑ رہا ہے، یہ جاننے کے لیے وائس آف امریکہ کی صبا شاہ خان نے بات کی ایک امریکی تھنک ٹینک رینڈ کارپوریشن کے سینئر ماہر معاشیات رفیق دوسانی سے. بھارتی حکومت نے کچھ بہت اچھے کام کیے ہیں. مثال کے طور پر اس نے حقیقتاً غریبوں کے لیے مالی لین دین کی لاگت کو کم کر دیا ہے. مثال کے طور پر اب رقم بھجوانا تقریباً مفت ہے، جبکہ امریکہ میں ہمیں اب بھی اس قسم کے معاملات کے لیے کافی فیس ادا کرنا پڑتی ہے. تو اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایک عام انٹرفیس متعارف کرایا جو ہر بینک کو استعمال کرنا تھا. تو یہ اس کی محض ایک
مثال ہے۔ اس نے ملک میں شفافیت کے لیے بہت اچھے کام کیے ہیں۔ غریبوں کے نقطۂ نظر سے یہ بہت فائدہ مند ہے، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بنیادی ڈھانچے میں بہتری کی گئی ہے اور کچھ ترقیاتی اقدامات اٹھائے گئے ہیں جو تیز رفتار ترقی کو فروغ دیں گے، اور حکومت نجکاری کرتی رہی ہے اور کچھ اثاثے فروخت کرتی رہی ہے۔ یہ اقدامات بھی کارکردگی کو بہتر کرنے اور حکومت کے کام کرنے کے لیے ایک اچھا اقدام ہے۔ اس معاشی ترقی میں مڈل کلاس کی شمولیت کا کتنا کردار ہے؟ بھارت میں اس وقت واقعی کوئی بڑا متوسط طبقہ نہیں ہے، اس میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 1.3 ارب آبادی والے ملک میں متوسط طبقہ تقریباً 15% یا زیادہ سے زیادہ 20 کروڑ ہوگا، لیکن یہ بہت سی غیر ملکی کمپنیوں کے لیے اتنی بڑی تعداد ہے کہ وہ 20 کروڑ افراد کی ضروریات کو پوری کر سکیں جو مصنوعات خرید سکتے ہیں، اور کچھ اس سے بھی زیادہ امیر ہیں۔ لہٰذا متوسط طبقے نے ابھی تک ترقی میں خاطر خواہ حصہ نہیں ڈالا۔ زیادہ تر ترقی سرمایہ کے خرچے کے ساتھ ساتھ دیہی آبادی کے حجم سے ہوئی ہے جو زرعی پیداوار میں اپنا بھرپور حصہ ڈال رہی ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ تقریباً گزشتہ 10 سالوں میں متوسط طبقے میں اضافہ ہوا جو اب بھی جاری ہے، جو کہ بھارت کے لیے بہت حوصلہ افزا نشانی ہے۔ International institutions are predicting that عالمی ادارے پیش گوئی کر رہے ہیں کہ 2030 سے پہلے بھارت دنیا کی تیسری بڑی معیشت بن جائے گا۔ بھارت میں عام آدمی پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ کیا غربت کم ہوگی؟ Those are two very different یہ دو بالکل مختلف باتیں ہیں۔ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ اگر ملک تیسری سب سے بڑی معیشت بن جاتا ہے تو اس سے غربت میں کمی آ جائے گی۔ بھارت تو پہلے اس فہرست میں 10ویں نمبر پر ہے۔ میرے خیال میں غربت کے لیے نچلی سطح پر ایک نقطۂ نظر کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں آپ کہتے ہیں کہ یا تو میں غریبوں کو دیہی علاقوں یا پسماندہ آبادیوں سے نکال کر شہری علاقوں میں اچھی رہائش گاہوں میں منتقل کرنے جا رہا ہوں جس میں اچھے اسکول وغیرہ ہوں، یا میں اس طرح کی حکمت عملیوں اور غریبوں کو نظر انداز کروں اور ملک کو شہری آبادیوں یا زیادہ تر شہری مڈل کلاس اور متوول طبقے کے سہارے ترقی کرنے دوں۔ بھارت کے پاس یہ سب آپشنز ہیں، اور اب تک رجحان یہ رہا ہے کہ تیزی سے ترقی ہو جس میں رکاوٹیں کم ہوں۔ اسی لیے بھارت نے سافٹ ویئر انڈسٹری اور ٹیلی کام وغیرہ کے لیے ایسا بنیادی ڈھانچے کا ماڈل اپنایا جس کی قیمت غریبوں کو ادا کرنا پڑی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اب اسے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ مودی نے بھارت میں صفائی کے لیے ایک پروگرام شروع کیا، وہ اچھا آغاز ہے۔ So let's see where that goes, What do you think? آپ کے خیال میں بھارت کی مضبوط معیشت سے جنوبی ایشیائی خطے کے ممالک کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ تو یہ ایک مشکل سوال ہے، کیونکہ بھارت کی اب یہ خواہش ہے کہ چونکہ اب وہ ترقی کر رہا ہے اور اس کے پاس مالی صلاحیت ہے، وہ چین جیسا بنے جو بآسانی عوامی سہولتیں دوسروں کو فراہم کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر چین کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو۔ چین افریقہ میں صحت عامہ کی سستی سہولتیں، نقل و حمل کے منصوبے اور دوسری کئی سہولتیں تعمیر کر رہا ہے، جس کی وجہ سے افریقہ کو بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ لہٰذا یہ موقع ہے کہ بھارت اپنی خواہش کے مطابق جنوبی ایشیا میں اپنا اثر و رسوخ بڑھائے۔ خاص طور پر اب چونکہ اس کے پاس ایسا کرنے کی صلاحیت ہے تو بھارت خطے میں چین کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا کر سکتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ افغانستان کو دیکھیں، جہاں بھارت اب کافی رقم خرچ کر رہا ہے۔ پہلے اس نے کچھ خرچ نہیں کیا۔ میرا مطلب ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے مودی کی کابل میں لائبریری قائم کرنے کی کوششوں کو روکا اور آپ اس پر فخر کر رہے ہیں۔ اب وہ نصف ارب اور $1 ارب کی رقم وہاں خرچ کر رہے ہیں۔ انہوں نے سری لنکا کی مدد میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ بنگلہ دیش، چین، بھارت اور نیپال کے درمیان بھی ایک متنازع علاقہ ہے، لیکن اس سارے معاملے میں 10 سال پہلے سے موازنہ کریں تو بھارت کا اثر زیادہ ہے۔ فرق یقیناً پاکستان کا ہے، جہاں روایتی دشمنی جاری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ پاکستان اندرونی طور پر بھڑکنے والا ہے۔ اس سلسلے میں بھارت کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تشویشناک بات ہے۔ Any help from India in that respect, so, that's a concern. امریکہ، جو ملک ہے خوابوں کا، اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا۔ We're introducing iPhone
अपनी इजाद से दुनिया बदलने वालों का। This is definitely a new approach. तहकीक, तजुर्बात और टेक्नोलॉजी से हम सबको नई राह दिखाने वालों का। कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए अपना कल रोशन बनाने वालों का। ऐसे ही ड्रीमर्स और अचीवर्स की कहानियां देखिए व्यू 360 में आज न्यूज़ पर। और अब कुछ बात पाकिस्तान और भारत के कशीदा ताल्लुकात की। पाकिस्तान और भारत के माहीगीर अक्सर समुद्री हदूद की खिलाफ वर्जी के नतीजे में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। इन माहीगीरों की कैद बाज़ औक़ात इतनी तवील हो जाती है कि उनके ख़ानदान वाले उनकी खैरियत भी नहीं जान पाते। ये ख़ानदान किन तकालीफ और मसाइब का सामना करते हैं, जानते हैं सिद्रा डार की रिपोर्ट में। बाप को भी देखा, बच्चा भी नहीं देखा हुआ। क्या मेरे बच्चा कहाँ रहते? बोला कल आ रहा। क्यों? गाड़ी में आगा पीछा होगा, सब जवाब देगा मेरे को। आज आ रहा, कल आ रहा, परसों भी आ रहा। ऐसा 9 साल हो गया। 9 साल में मैंने यार क्या करूँ? ओ भाई अंदर गुरी ढीला नहीं मटिक नहीं गुरी ठंडा लगा भाई जी। मधुआ तीना रहा बना रहा मधु दुनिया दारी बेगुना दारे जा गई। पाकिस्तान और भारत समंदरी हुदूद की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में हर साल एक दूसरे के दर्जनों माहीगीरों को गिरफ्तार कर लेते हैं। ये माहीगीर गलती से सरहद अबूर करने की पादाश में बरसों कैद काटते हैं और इनके अहले खाना अपने प्यारों की वापसी के इंतज़ार की आग में जलते रहते हैं। अल्लाह ताला तुम मांगने ए बेटा का मेरे मिलता। मैं ज़िंदगी भर बाहर नहीं निकाला हुआ। मेरा बेटा इंडिया जेल में जाता, मुझे सारा दिन के बाहर थे घूमते घूमते, हर दफ्तर में गए जाते। फातिमा के शौहर और बेटा 2013 में भारतीय नेवी के हाथों गिरफ्तार हुए थे। उनके शौहर तो 2015 में घर लौट आए, मगर बेटा 9 साल से कैद है। हर जगह में गया हूँ मैडम, मैं ऐसे कोई जगह नहीं छोड़ा। समझ लो मेरे बेटे के लिए बहुत कुछ कुर्बानी दी। जिस टाइम में मेरे बेटा मेरे बगल से छूटा हुआ बागा बॉर्डर में, उसी टाइम से लेकर समझ लो मेरा दिल फटा हुआ। बेटे का जलन की वजह से मेरा जो बीमारी पैदा हो गई। उससे सबसे बड़ा बेटा मेरा वही था, कमाने वाला, वो मेरे साथ देने वाला था। मगर जब से आया हूँ समझ लो ना कमाने वाला, बीमारी के लिए ना इलाज की पैसा हो सकता है। बड़ा परेशानी है, बड़ा दिक्कत है। कई गिरफ्तार माहीगीरों की बीवियों की कहानियाँ भी इतनी ही दर्दनाक हैं। असमा, तुम्हारे शौहर इतने साल से इंडिया की जेल में हैं, कोई खैर खबर भी नहीं है, तो इतने जो साल गुजरे हैं 4-5 साल, इसमें तुम क्या सोचती हो? मैं इतने में तो बहुत कुछ सोचती हूँ। वो आएंगे और ये भी सोचते शायद वो कभी ना आए, और उनके बगैर मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ? समंदर पे तो कोई सरहद नहीं होता है ना। ये इंडिया का सरहद है, ये पाकिस्तान का सरहद है। सब अपने औलादों के लिए कमाने के लिए जाते हैं। उन लोगों की आपसी झगड़े से उन लोगों को शायद फ़र्क पड़ता या ना पड़े, ये तो मालूम नहीं। बस हम गरीबी पिसते। हुकूमत का तो कुछ नहीं जाता है, सब हमारा ही जाते। हमारे औलाद बेसहारे हो गए, उनके भाई बहन बेसहारा हो गया। अभी उनके जेल जाने के बाद उनके अब्बू का भी फौत हो गया, उनकी अम्मी का भी फौत हो गया। ये भी इनके इंडिया में जाने के बाद सिर्फ घर में एक कुंवारी बहन है और 3 मेरे बच्चे हैं। माहीगीरों की फलाह के लिए काम करने वाले इदारों के मुताबिक दोनों मुमालिक माहीगीरों की रिहाई के लिए संजीदा नहीं। UN कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी जो है उसमें क्लियरली आर्टिकल 73 में क्लियरली मेंशन है, अगर गलती से भी चाहे वो इंडिया के जो हैं वो माहीगीर हो या पाकिस्तान के, अगर गलती से भी अगर बॉर्डर क्रॉस हो जाता है तो आप उनको आइडेंटिफाई करके उनको उसी वक्त या 2 दिन में आप उनको छोड़ दें। लेकिन ये क्या करते हैं कि जिस आर्टिकल के ऊपर इन लोगों ने, जिस कानून के ऊपर जिन लोगों ने सिग्नेचर की हुई, वो खुद ही जो दोनों मुल्क जो है ना उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जब मेरा शौहर जा रहा ना, इस टाइम पे ये 2 महीने का पेट में था। फिर ये अभी 3 साल चल रहा है। फिर बड़ा वाला बेटी है, इससे छोटा बेटा है, कमाने वाला भी कोई नहीं। फिर मेरा बच्चा छोटा को भी फिशरी भेज देता हूँ। अभी ये बहुत छोटा बच्चा है, रात को जाता है, सुबह आता है। अल्लाह देखेगा, मैं इसका बच्चा का खाता हूँ ना, मेरे को बहुत परेशानी लगता है। उस टाइम पे वो पढ़ाई करता था, फिर कुरान शरीफ पढ़ा निकाल दिया। बस हम जाएंगे काम पे। अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, जल्द से जल्द अपने वतन पे वो आए और अपने औलादों से मिले। बस यही आसरे में हम बैठे हुए। कभी कभार दिल पे यही लगता, अल्लाह अगर वो नहीं आए तो क्या करूँ? वैसे भी मरी हुई हूँ और भी मर जाऊँगी। अभी शौहर नहीं, इतना मजबूर है,
दूसरे ने तोड़ मारता, उसने भी ख्याल करता भी नहीं। फिर मेरे को लगता है एक दिन न एक दिन आएगा, मैं भी उसकी उम्मीद में रहूँगा, शादी नहीं करूँगी, ये उम्मीद रखता हूँ दिल में। जितना मिलेगा उतना खाऊँ, फिर भी दूसरा शादी भी नहीं करूँगा, मेरा शौहर के लिए मैं इंतज़ार करूँगा। ये मेरा बच्चा है ना, मैं बोलता हूँ आदमी लोग को मेरा शौहर यही है 5, ये बोलता हूँ। पाकिस्तान में सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 70 लाख अफराद मनशियात की लत में मुब्तला हैं। आपकी मुलाकात करवाते हैं आज एक ऐसी माँ से जो नशे की आदत में मुब्तला अपने 2 बेटे खो चुकी हैं, जबकि उनके एक बेटे ने हाल ही में नशे का इस्तेमाल छोड़ा है। अब वो अपने इलाके के नौजवानों को नशे की हालत से बचाने के लिए और नशे की लत से बचाने के लिए घर घर जाकर काउंसलिंग कर रही हैं। गुलशन बीबी से मुलाकात करवा रही हैं समन खान। लाहौर के इलाके शाहदरा के घरों में जाकर ख्वातीन से मिलने वाली ये गुलशन बीबी हैं जो माओ को अपनी सबक-आमूज़ कहानी सुनाती हैं और उन्हें अपने बच्चों पर नज़र रखने पर जोर देती हैं। चलो नहीं, वो अच्छा मम्मा आप जाओ, मैं आ रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं, वो घर नहीं आते थे। गुलशन बीबी ने अपने 3 में से 2 बेटों को नशे में मुब्तला होकर जान की बाजी हारते देखा है, लेकिन उन्होंने नशे की दलदल में फंसे अपने तीसरे बेटे को मौत के मुंह से निकाला है। मेरे जो हस्बैंड हैं वो फोत हो गए थे, बच्चे छोटे छोटे थे, उनको खाने का पीने का सब कुछ करना था, उसलिए जॉब करती थी, सुबह जाती थी और शाम को मैं आती थी। सबसे पहले अली नशे में लगा था, वो ज़्यादातर पहले चरस वगैरह पीते थे और उसके बाद वो टीके पे लग गया था। अब उसको बचाते बचाते दूसरा बेटा वो सूंघने में लग गया, मैंने उसको घर में बांधी रखा उसको। उसके लिए मैंने बहुत किया कि इलाज में ये किसी इदारे में जमा हो जाए, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं हुआ, वो अचानक ही फोत हो गया। इस तरह मेरे 2 बेटे फोत हो गए और एक बेटा मेरा उसका माशाल्लाह ठीक है, इलाज हुआ है। गुलशन बीबी कहती हैं कि नशे से निजात के प्राइवेट मराकज़ में इलाज महंगा होने के बायस इनके लिए बेटों का नशा छुड़वाना मुमकिन नहीं था और सरकारी अस्पतालों में कायम मराकज़ में जगह मिलना आसान न था। मैं गवर्नमेंट के हॉस्पिटल गई थी, मेंटल हॉस्पिटल में, वहाँ पर नशे का भी काम करते हैं, बच्चों को दवाइयाँ वगैरह देते हैं, बड़ों को भी, लेकिन उससे कोई नहीं। वो कहते हैं जी आपका बेटा का दाखिल है तो आप भी साथ हो, लेकिन मैं अपनी बेटी को साथ लेके हॉस्पिटल में कैसे रह सकती हूँ, क्योंकि वो तो बच्चे को ट्रीटमेंट करेंगे, हम माँ बेटी का खाना कहाँ से आएगा, हमने कहाँ से खाना हमने। 2 बेटों के बाद तीसरे बेटे को गंवाने का तसव्वुर भी उनके लिए तकलीफ दे था। इस बार उन्हें गैर सरकारी तंजीम सर्च फॉर जस्टिस और ह्यूमन अपील का सहारा मिल गया, जिन्होंने उनके बेटे अली का एक निजी बहाली मरकज से इलाज करवाया। वो इस आदत में दोबारा मुब्तला ना हो, इसके लिए इदारे ने उसके दूसरे शहर रोजगार का बंदोबस्त भी कर दिया। अर्जेंट या इमीडिएट सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि जैसे पिछले दिनों पंजाब के अंदर सेहत कार्ड जो थे उसके ऊपर जो था वो इलाज फ्री हो रहा था, तो सेहत कार्ड्स के अंदर इस तरह की भी प्रोविजन रखी जाती कि इस तरह के हॉस्पिटल्स जो नशे के आदी अफराद को ट्रीटमेंट की सहूलियात फ्राहम कर रहे हैं वो भी उसके प्रीव्यू में लाए जाते हैं, ताकि बहुत सारे अफराद जो पैसे ना होने की वजह से मयारी इलाज तक रसाई हासिल नहीं कर पाते हैं, उनकी रसाई भी जो है वो उस तक यकीनी हो पाती। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए मंशियात की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 70 लाख से ज्यादा अफराद नशे की लत में मुब्तला हैं। इनमें केमिकल्स वाले नशे के इस्तेमाल में इजाफा हो रहा है, जिनमें हेरोइन, कोकेन और आइस का नशा शामिल है, जिनमें से सिर्फ 30,000 अफराद को इलाज की सहूलत दस्तयाब हो पाती है। गुलशन बीबी की जिंदगी में सुकून के कुछ लम्हात मुयस्सर आए तो उन्होंने अपनी जिंदगी को नशे के नुकसानात से मुतल्लिक आगाही के लिए वक्फ कर दिया और अब वो सर्च फॉर जस्टिस और ह्यूमन अपील के प्लेटफॉर्म से सोशल वर्क करती हैं। नशा करने लग गया, इसके बाद वो बुरी आदतों में पड़ गया। इसी गैर सरकारी तंजीम के ज़ेर इंतज़ाम शाहदरा में हाई रिस्क स्ट्रीट चिल्ड्रंस को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कायम आमीना प्रोटेक्शन एंड लर्निंग सेंटर अपने साथ 200 बच्चों को रजिस्टर्ड करने में कामयाब हुआ है, जिनके मुताबिक गलियों में घूमने वाले बच्चों को 4 से 6 घंटे के लिए ही सही, लेकिन एक महफूज माहौल दे दिया जाए तो शायद वो यहाँ से बाहर निकलकर अच्छे और बुरे में फ़र्क कर सकें। फैमिली के अंदर रहते हुए जब बच्चा रात को वापस भी आ रहा है, सुबह उठ के वहाँ से जा रहा है, फिर भी वो इन्हीं चीज़ों में इन्वॉल्व है, उसकी बहुत बड़ी वजह इन इलाकों में चीज़ों का एक्सेसिबल होना है। इतना ज़्यादा आपका एक्सपोजर हो गया होता है कि फैमिली उन चीज़ों को नॉर्मलाइज़ कर देती है। जब फैमिली नॉर्मलाइज़ कर रही होती है तो बच्चे ने तो अपने ब्रॉटअप में वो चीज़ सीख ली कि भाई वो फलानी बाजी है, वो बाजी हैं। वो ये नहीं सिखाया गया कि इस बाजी से आपको बचना है, इस भाई से आपको बचना है। गुलशन बीबी कहती हैं कि उन्हें अपने तीसरे बेटे के लिए जो मदद मिली, अगर ऐसी ही मदद अपने पहले 2 बेटों के इलाज और बहाली के लिए भी मुयस्सर आ जाती तो शायद आज वो जिंदा होते। दूसरी तरफ माहिरीन कहते हैं कि सरकारी इलाजगाहों में मरीज़ के दाखिले से लेकर क़याम के दौरान बच्चों, नौजवानों और बालिग अफराद के लिए इलाज की सहूलतों के लिए अलग अलग निज़ाम का तश्कील देना भी ज़रूरी है और वापसी पर नशे से पाक माहौल भी यकीनी बनाना होगा ताकि किसी गुलशन बीबी का गुलशन ना उजड़े।
समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। क्या आपके मोबाइल और लैपटॉप पर वॉइस ऑफ अमेरिका की वेबसाइट नहीं खुलती? तो आप हमारा कंटेंट देखने और पढ़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर आएं। या हमारी स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड करें जो एप्पल और एंड्रॉइड दोनों डिवाइसेस के लिए दस्तयाब है। और अब बात करते हैं गुज़िश्ता चंद हफ्तों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर की। मसनूई ज़हानत की बुनियाद पर बनाया गया ये सॉफ्टवेयर चैट जीपीटी जहां दुनिया भर में दिलचस्पी का मरकज़ बना हुआ है, वहीं अमरीकी माहिरीन तालीम इसके फ़वाइद और ख़तरात पर बहस कर रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट। 2022 में मसनूई ज़हानत की टेक्नोलॉजी पर मबनी चैट जीपी नामी तहरीरी आले ने फौरी पजीराई हासिल की, लेकिन इसने कई खदशात भी पैदा किए, खास तौर पर स्कूल्स में। हाई स्कूल की तालिबा गैल्वन फिकिस के सामने एक छोटी सी कमांड से जेन एयर नामी उस किताब की समरी आ गई जो उसे स्कूल की एक असाइनमेंट में पढ़ने के लिए दी गई थी। मेरे ख्याल में इसकी कारकर्दगी काफ़ी अच्छी है। लूपुलैक टेलर जैसे कुछ असातिज़ा फ़िक्रमंद हैं कि मुफ्त में दस्तयाब इस सॉफ्टवेयर को तलबा होमवर्क करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इनकी सीखने की सलाहियत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। जैसे कि तनकीदी सोच विचार जिसकी हम सबको बहैसियत इंसान ज़रूरत है, और तख्लीकी सलाहियत और ख़ुद कुछ करने की कोशिश जो कि तलबा के लिए फ़ायदेमंद होती है, और ये कहना कि ये हमने किया है। अमेरिका भर में स्कूल्स अपने कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स पर चैट जीपीटी तक रसाई को महदूद करने का फैसला कर रहे हैं। सैन फ्रांसिस्को में कायम ओपन एआई के तैयार करदा चैट जीपीटी को इंटरनेट पर दस्तयाब मुतादिद जुबानों के मवाद को इस्तेमाल करते हुए तरबियत दी गई है। जब इसे इशारा किया जाता है तो ये अल्फाज की सबसे मुमकिन तरतीब का इस्तेमाल करते हुए एक रद्द अमल पैदा करता है और इंसानी सोच से मिलता जुलता असल मतन तख्लीक करता है। इसकी कोई माखिज दस्तावेज नहीं, दुरुस्त या कोई ऐसी वाज़ेह मिसाल नहीं जिससे हम ये कह सकें कि इसे कहीं से नकल किया गया है। एनी चचिटाली टर्निटिन की चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर हैं। टर्निटिन की सर्विस को 140 मुल्कों में तालीमदान तालीमी सालमियत यकीनी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टर्निटिन का जालसाजी को पकड़ने वाला सॉफ्टवेयर मुमकिना मुमासलत के लिए इंटरनेट की जांच करके तलबा के लिखे की सदाकत को परखता है, लेकिन जब एआई या मसनूई ज़हानत के जरिए मतन लिखा जाता है तो हर सतर मुनफरिद होती है, जिससे धोखाधड़ी का पता चलाना मुश्किल हो जाता है। ताहम एआई की तहरीर का एक इम्तियाजी उनसर भी है। वो एक बहुत ज़्यादा एवरेज अंदाज में लिखते हैं, जबकि हर इंसान की अपनी इनफरादियत होती है। हम सब का लिखने का अपना अपना अंदाज होता है, लिहाजा हम ऐसे डिटेक्टर्स बनाने के काबिल हैं जो ऐसे केसेस की शनाख्त कर सकते हैं जिनमें पूरा का पूरा मतन मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल करके उसी के अंदाज में लिखा गया हो। टर्निटिन का चैट जीपीटी का ये डिटेक्टर इस साल के आखिर तक मंजर-ए-आम पर आने की तवक्को है। वोंग का कहना है कि मसनूई ज़हानत के आलात का मुकाबला करना एक मुसलसल चैलेंज होगा जो तालीमी मंजरनामे को बदल देगा। बहुत सारी चीज़ें जिन्हें हम उसूलों या फिर पुरानी इक़दार के तौर पर देखते हैं, अब उन्हें तब्दील होना पड़ेगा। मुमकिन है कि एक रोज़ मसनूई ज़हानत को कमरा जमात में उसी तरह कबूल कर लिया जाए जैसा कि कैलकुलेटर को। उस्ताद स्टीव राइट उस वक्त बहुत मुतासिर हुए जब उनके तलबा ने चैट जीपीटी के इस्तेमाल से इनकी कैलकुलस क्लास के लिए स्टडी गाइड बनाई। देखिए, अगर चैट जीपीटी आपको ये कहने पर मजबूर कर दे कि अब मैं अपने तलबा को फरसूदा तरीके से सीखने का नहीं कह सकता, बल्कि अब मुझे खुद ज़्यादा गहराई में जाकर उन्हें सोचने पर कायल करना होगा कि आया वो वाकई कुछ सीख रहे हैं, ऐसा हो जाए तो बहुत ज़बरदस्त होगा। ये वाज़ेह है कि अब स्कूलों और दीगर जगहों पर एक नए मुस्तकबिल को लिखने में मसनूई ज़हानत या एआई का अहम किरदार होगा। मैट डिबल के साथ सादिया ज़ेबरान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA Urdu के नाम से, और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।